آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو ایزیلی جاب چائنیز ہوٹل کے اوپر مل جاتی ہے اور وہاں پر جو آپ کی سیلری لگتی ہے وہ منیمم 1100 سے 1200 سیلری ہوتی ہے، پھر 8.5 یورو دن کا، اور اگر آپ دوسری شفٹ کرتے ہیں سیکنڈ شفٹ 2 بجے سے لے کے 10 بجے کی، اس کے اندر آپ کا گھنٹہ ہوتا ہے تقریباً 9.5 سے 10.5 یورو۔ جو اٹلی کی ایوریج جو سیلری ہے وہ جاتی ہے 1400-1500 یورو آپ کی سیلری نکل آتی ہے۔ اب 1500 یورو پاکستانی بنتے ہیں تقریباً 4.5 لاکھ روپیہ۔ بڑی فیکٹریز کے اندر جو کیٹیگریز ہیں، ایک کام ہے لکڑ کا کام ہے، سیکنڈ کام ہے مگ ویلڈنگ کا کام ہے، تھرڈ کام ہے جی لوہے کا کام ہے، آپ لوہے کا کام کر سکتے ہیں اور یہ لوہے کی فیکٹری بہت زیادہ یہاں پر ہے۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں اٹلی کی سیلری کے اوپر کہ یورپ کے اندر اس وقت جو سیلری کا سسٹم ہے وہ کیا چل رہا ہے، خاص طور پہ میں اٹلی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بھائی جتنے بھی دوست ہیں جن کی ایج 18 سال ہے اور 18 سال سے لے کے 60 اور 65 ایج تک کے جو لوگ ہیں جو پاکستان سے یا یورپ کے اندر کسی بھی کنٹری کے اندر جانا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، نیپال، کسی بھی کنٹری سے ہیں، افغانستان سے ہیں، جہاں کہیں سے بھی ہیں، آپ یورپ کے اندر آنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اٹلی کے اندر سیلری کا نظام کیا ہے جو اس وقت 2025 ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو بتاتا جاؤں یورپ کے اس حوالے سے کہ جب بھی یورپ کے اندر سال کا اینڈ آتا ہے، یعنی کہ نومبر اور دسمبر کے مہینے آتے ہیں، تو اس دوران اگر کوئی بندہ آ کر کام کرنا چاہے، لگنا چاہے، اگر کسی جگہ پہ ڈیمانڈ ہو تو کام مل جاتا ہے، ادروائز ان 2 مہینوں کے اندر کام بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ اب جو جاب سٹارٹ ہو رہی ہیں دوبارہ سے وہ سٹارٹ ہوں گی جنوری کے اندر، جنوری اور فیبرری سے، یعنی کہ ان مہینوں کے اندر پورا سال پھر کام ملتا رہتا ہے اور کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو جناب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو سیلری کا نظام ہے، بیسک سیلری یہاں اٹلی کے اندر کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ پھر یہاں پر کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور گھنٹہ یہاں پر کیسے آپ کو ملتا ہے، کتنے گھنٹے پر گھنٹے کا حساب سے آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نظام ہے جی آپ ایٹ دا اینڈ جب مہینہ پورا ہوتا ہے تو آپ کو سیلری کب ملتی ہے اور کتنی سیلری ہوتی ہے۔ میں یہ تمام چیزیں اب آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور 2025 سٹارٹ ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ یہ سال آپ کے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئے اور آپ کی جتنے بھی ڈریمز ہیں وہ ڈریمز کمز ٹرو کے اندر بدل جائیں، آپ دنیا کی سیر کر سکیں، پوری دنیا گھوم سکیں، اور یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو ہم دنیا کے اندر دیکھ سکیں، گھوم سکیں اور اچھا کمائیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں اور اپنوں کو خوشیاں دے سکیں۔ تو دوستو اٹلی ایک ایسا کنٹری ہے جو اوورآل ہر طرح کے کنٹری کے لوگوں کو یہاں پر ایکسیپٹ کرتا ہے، اور آپ جب یہاں پر آتے ہیں، یہاں آ کر سب سے پہلے آپ نے یہاں کا لینگویج بیریئر ہے جو آپ نے سیکھنی ہوتی ہے۔ اتنی زبان آپ کو آنی چاہیے بیسک کے، کم سے کم آپ اگلے بندے کی بات کو سمجھ کے آگے سے اس کو جواب دے سکیں ہاں یا نہ کے اندر، اور یہ سمجھ سکیں کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کام آپ کو کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر آتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے زبان سیکھنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کوشش کرتے ہیں کہ لائسنس کر کے آپ گاڑی لے لیں۔ گاڑی لینا یہاں اٹلی کے اندر بہت ہی آسان ہے، صرف آپ نے لائسنس کرنا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہے اور پھر آپ آگے سے گاڑی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہاں جو جابز کا سسٹم ہے کیٹیگری وائز جو جابز ہیں، سٹارٹنگ کے اوپر جو جاب ہے وہ ایگریکلچر کی جاب ہے، جو کہ ابھی یہ نومبر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس مہینے سے ایگریکلچر کا کام سٹارٹ ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایگریکلچر کی ویڈیوز بھی بہت جلد دکھانے والا ہوں، وہ کام بھی آپ کو دکھاؤں گا، وہ چیزیں بھی آپ کو ساری بتاؤں گا الگ ویڈیوز کے اندر۔ ایگریکلچر کے اندر جو بندہ بھی سٹارٹنگ کے اوپر آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی سٹارٹنگ کے اوپر کام نہیں آتا، زبان نہیں آتی، تو میں یہ کام کر لوں۔ ایگریکلچر کے اندر 6.5 یورو سے لے کے 9-10 یورو تک گھنٹہ چلتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کام کس کے ساتھ کرتے ہیں اور کس ایریا کے اندر کرتے ہیں۔ منیمم ایک بندہ ایگریکلچر کی فیلڈ کے اندر آپ کما سکتے ہیں 800 یورو سے لے کے 1100 1200 1300 1400 یورو تک ایک نارمل بندہ کما سکتا ہے، زیادہ بھی کما سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی محنت، آپ کتنے روپے گھنٹہ وہ اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ منیمم جو گھنٹہ ہے وہ 6.5 یورو گھنٹہ، ایک جو گھنٹہ آپ کو ملے گا 6.5 کا۔ اس کے بعد سیکنڈ کام آ جاتا ہے جی ہوٹل لائن کے اندر، کسی بھی ریسٹورینٹ کے اوپر آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اب ریسٹورینٹ فیلڈ کے اندر چائنیز ہوٹل یہاں پر بہت زیادہ ہیں، کیونکہ آپ جب یہاں پر آتے ہیں تو آپ کو ایزیلی جاب چائنیز ہوٹل کے اوپر مل جاتی ہے، اور وہاں پر جو آپ کی سیلری لگتی ہے وہ منیمم 1100 سے 1200 سیلری ہوتی ہے۔ پھر آپ کا ایکسپیرینس دیکھ کے، آپ کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں چاہ رہے، تو وہ پھر آپ کی سیلری اس حساب سے بڑھاتے ہیں۔ ایون کہ یہ آپ کو گھر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ چارجز یہ آپ سے کاٹتے ہیں، 100 یورو یا 150 یورو آپ سے چارجز لیتے ہیں۔ سیکنڈ کام تو یہ ہے اور اس کی سیلری یہ ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے تھرڈ کام کہ اگر آپ کے پاس کوئی اپنا ہنر ہے،
अगर आप बार्बर कट के कारीगर हैं तो आप किसी भी दुकान के साथ बात करके कमीशन बेस के ऊपर वहाँ पर काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप स्टिचिंग के कारीगर हैं तो स्टिचिंग के अंदर ये है कि आप स्टिचिंग के अंदर किसी भी दुकान के ऊपर जाके, यहाँ कुछ इंडियंस की दुकानें होंगी, कुछ चाइनीज़ की दुकानें होंगी और शायद कुछ पाकिस्तानी की दुकानें हों, आप उनके साथ जाके काम स्टिचिंग का कर सकते हैं और कमीशन बेस के ऊपर वहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप ये स्टिचिंग का काम अपना भी स्टार्ट कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप ये जो बार्बर कट का काम है ये भी आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ये आप फ्यूचर के अंदर स्टार्ट करेंगे जब आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद काम है जी आप प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस आपके पास है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं आप, उसके बाद आप वेल्डिंग का काम जानते हैं, उसके बाद फिर आप कोई ना कोई आईटी की फील्ड से स्पेशलिस्ट हैं, तो ये जो आपको एक्सपीरियंस है, प्लम्बर का आपको एक्सपीरियंस है, मिग वेल्डिंग का आपको एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस जो चीज़ें हैं, जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है, आप डिज़ाइनर हैं, कोई भी चीज़ है, अब ये कैटेगरी वाइज आ जाता है फैक्ट्री लाइन के अंदर। अब ये जितने भी कैटेगरीज हैं, इन कामों के अंदर आप कैसे अपने आप को इन कर सकते हैं, कैसे अपने एक्सपीरियंस के अबाउट आप इसके अंदर कितने पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यहाँ पर होते हैं कोर्सेज। अगर आपके पास प्रैक्टिकली कोई भी एक्सपीरियंस है, आपने यहाँ पर करने होते हैं कोर्सेज करने के बाद फिर आप को जो एजेंसी है वो रिकमेंड करती है कि आप इस जगह पर जाकर काम कर सकते हैं। अब वो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं या वो एजेंसीज होती हैं तो आपको उन जगह के ऊपर भेजा जाता है और पर घंटे के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको घंटा दिया जाता है। अब जब आप एजेंसीज के थ्रू किसी बड़ी फैक्ट्री के अंदर जॉब करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम जो आपका घंटा लगता है वो 8.5 यूरो दिन का होता है। अब मैं आपको कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ, 8.5 यूरो दिन का। और अगर आप दूसरी शिफ्ट करते हैं, सेकंड शिफ्ट 2 बजे से लेकर 10 बजे की, उसके अंदर आपका घंटा होता है तकरीबन 9.5 साढ़े 10 यूरो। और अगर आप रात की ड्यूटी करते हैं, एक शिफ्ट होती है रात की, उसके अंदर आपका घंटा होता है 11.5 साढ़े 12 साढ़े 13 भी आपका घंटा होता है। तो ये डिपेंड करता है आप शिफ्ट वाइज काम करते हैं या सिर्फ दिन के अंदर काम करते हैं या 2 कैटेगरी मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर काम करते हैं। ठीक है, 3 शिफ्टें भी चलती हैं, 2 भी चलती हैं, 1 भी चलती है। अब ये चॉइस आपकी अपनी है कि आप किस फर्म के अंदर कौन सी कैटेगरी के अंदर काम करना चाहते हैं, ये आपके पास चॉइस है कि आप कर सकते हैं। अब इसके बाद किसी भी सिटी के अंदर चले जाएं, आप किसी भी सिटी में चले जाएं, वहाँ पर 5 से 6 फैक्ट्रीज़, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जिसके अंदर आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी काम होगा, वो 5 से 6 बड़ी फैक्ट्रीज होंगी, उसके बाद छोटी नॉर्मल फैक्ट्रीज होंगी। अब मैं ये आपको बात बता रहा हूँ क्लियरली कि वो जो 4 से 5 बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग के ऊपर ही, मैक्सिमम स्टार्टिंग के ऊपर आपकी जा सकती है 1800-1900 तक। ये जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़े एजेंडे यहाँ पर बोलते हैं। जो नॉर्मल फैक्ट्रीज़ हैं उसके अंदर जो इटली की एवरेज जो सैलरी है वो जाती है 1400-1500 यूरो आपकी सैलरी निकल आती है। अब 1500 यूरो पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 4.5 लाख रुपया। और अगर 1900-2000 की बात करें जो आपकी सैलरी निकलती है वो तकरीबन बनता है राउंड अबाउट 6 लाख के करीब जो आपकी सैलरी निकल आती है। ठीक है, टैक्स वगैरह काट के। ये चीज़ आपको क्लियर और वाज़ेह हो चुकी होगी। अब काम कौन कौन से हैं जो बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर काम है और वो कैटेगरी कौन सी है। देखिए, बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर जो कैटेगरीज हैं, एक काम है लक्कर का काम है, सेकंड काम है मिग वेल्डिंग का काम है, थर्ड काम है जी लोहे का काम है। आप लोहे का काम कर सकते हैं और ये लोहे की फैक्ट्री बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। अब ये जो नॉर्मल कैटेगरी वाली फैक्ट्रीज़ हैं ये मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर प्लास्टिक का काम होगा, शिप्स का काम होगा, इसके अलावा यहाँ पर मेटल मैकेनिक का काम होगा, जिसके अंदर आपकी जो सैलरी है वो 1400 से 1500 सैलरी निकलती है। अब हर कोई बंदा बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ पर नहीं कमाना चाहता। लोग कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में सुकून भी चाहिए, हम नॉर्मल सा काम करें, हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हम थोड़े पैसों के अंदर अपना गुजारा कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको काम बताए हैं ये ऑपरेटर फील्ड काम है, जिसके अंदर हम एज अ ऑपरेटर काम करते हैं। अब ये स्टार्टिंग बेस के ऊपर जो है जितने भी ये काम है मैंने आपको बताए हैं। अब इन्हीं कामों के अंदर जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, एक्सपीरियंस होता है 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल, आपका लेवल वाइज आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाती है। लेवल वाइज आपकी सैलरी जो 1900 वाला था वो 2200-2300 कमाएगा, जो 1500 वाला था वो 1700-1800 कमाएगा। तो ये डिपेंड करता है लेवल वाइज आप कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे आप कामयाबी हासिल करते हैं, ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है।
देखिए कहीं भी आप पाकिस्तान के अंदर भी अगर जॉब करते हैं, इंडिया के अंदर भी आप काम करते हैं, किसी भी जगह पे एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं, तो जाते ही आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिल जाते। लेकिन आप स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, फिर आगे। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट है काम करते हुए, कि काम करते हुए आपको यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इन दी टर्मिनेटो कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जिसको परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, फीसो। उसके अंदर ये है कि आप घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, मोबाइल ले सकते हैं, और जो कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे कि अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, फैमिली को बुला सकते हैं। इवन कि आपको और बहुत सी चीज़ें हैं जो आप यहाँ इटली के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट है आपका इन दी टर्मिनेटो कॉन्ट्रैक्ट का। और ये कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर यहाँ पर किया जाता है या तो 1 साल के बाद, या बड़ी कंपनीज जो करती हैं आपके साथ 2 साल के बाद मुसलसल आपको देखते हैं कि आप यहाँ पर काम कैसे कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर 2 साल के बाद आपको ये कॉन्ट्रैक्ट फीसो दे देते हैं, और फिर आपकी ज़िंदगी ईजिली यहाँ पर गुजर सकती है और आप अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। और इसी कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर जब आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो आप बड़े बड़े कंट्रीज़ के अंदर, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके बाद चाइना, इन कंट्रीज़ के अंदर घूम फिर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे होते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ये लोग, ये जो गवर्नमेंट है, ये समझती है कि अगर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। तो एज वाइज मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि एज वाइज 18 साल वाले से लेकर 30 साल वाले को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि ये बंदा बहुत ही हमारे लिए कारआमद है, और इसका टैक्स भी कम जाता है और बड़ा बेहतरीन निज़ाम होता है। ठीक है, अब इससे जो ज़्यादा एज वाले हैं, जैसे 65 ईयर तक, 65 साल तक के लोग, और कुछ लोग मजदूर भी अगर हों कि आपके हाथ पांव थोड़े से काम नहीं करते, खुदा ना ऐसा कोई चीज़ आपकी ठीक नहीं है बॉडी की, तो उनके लिए भी एक ऐसा कैटेगरी वाइज यहाँ पर काम है कि नॉर्मल काम आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं कि आप 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे काम करके आप यहाँ अपना सर्वाइव कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं सारी यहाँ पर, कि हर एक को यहाँ पर इंसानियत के तौर पे यहाँ पर हक दिया जाता है कि आप किसी भी सिचुएशन के अंदर हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर आपको काम दे दिया जाता है कि आप कम पैसे कमा लें और आप अपना सर्वाइव कर सकें। इवन कि यहाँ पर ये चीज़ है कि अगर किसी के साथ कोई मसला बन जाता है, तो गवर्नमेंट भी उसको देखते हुए, इंसानियत को देखते हुए, कि उसको काफ़ी चीज़ें सहूलत के तौर पर दे सकती है। और ओवरऑल सैलरी की बात जो मैंने आप दोस्तों को बताई है कि भाई अभी 2025 के हवाले से जो न्यू सिस्टम स्टार्ट हो रहा है सैलरी का, और वो मैंने आप दोस्तों को बता दिया है कि अब ये एक नए साल के अंदर हम एंटर हो रहे हैं। अल्लाह पाक की ज़ात करम करे सब पर। और साथ साथ ये है कि जो लोग भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी जॉब्स के लिए, इटली की जॉब्स के लिए या दूसरे यूरोप कंट्रीज़ की जॉब के लिए, लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, Indeed.in जो है वो सबसे बेस्ट है, Jobs.in जो वेबसाइट है वो सबसे बेस्ट है। आप इनके ऊपर अपनी CV, अपना कवर लेटर, ये सारी चीज़ें बनाकर अपलोड करें और साथ में अप्लाई करते रहें। और आप जैसे ही आपको कोई इंटरव्यू या कॉल आती है तो उसको अटेंड करें, और अपना इंटरव्यू डन करके एम्प्लॉयर के साथ आप यहाँ आकर जॉब ढूंढ सकते हैं। ज़रूरी नहीं डायरेक्ट आप इटली आएँ, बहुत से लोग हैं जो इस वक्त क्रोएशिया के ज़रिए से आ रहे हैं, स्लोवेनिया के ज़रिए से आ रहे हैं, बहुत लोग हैं जो रोमानिया के ज़रिए से आ रहे हैं। आपका काम है सिर्फ कोशिश करना, कोशिश आपके हाथ में है। कोशिश करने के बाद ही हर चीज़ पॉसिबिलिटी की तरफ, मुमकिन की तरफ जाती है। कहा जाता है कि दुनिया की कोई भी चीज़ यहाँ पर ला हासिल नहीं है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। ये दुनिया आलम मुमकिनात है, यहाँ पर हर चीज़ मुमकिन है। सिर्फ अगर हाँ या ना का फ़र्क है तो वो आपकी सोच का फ़र्क है। अगर आपने कह दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप एक दिन उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, चाहे दुनिया ये कहे कि भाई तुम नहीं कर सकते। और अगर आपने कह दिया कि ये मुझसे नहीं होगा, तो पूरी दुनिया आपको उसको दिलवाने के लिए लग जाए, लेकिन वो आपको नहीं मिल सकता भाई। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। वेल ओवरऑल आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत ज़्यादा थैंक्स, जितने भी दोस्त हमें प्यार दिखाते हैं, मोहब्बत दिखाते हैं, और जितना उम्मीद है कि मैंने आपको ये तमाम मैसेज आप तक कन्वे कर दिया। और अगर कोई बात रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी बात हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एट द एंड आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तानी यहाँ पर, अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पर रह कर इटली के अंदर आप कितने पैसे कमा सकते हैं, एक पाकिस्तानी यहाँ पर रह के एक महीने का कमो बेश 8 से 9 लाख रुपए कमा सकता है। जो डबल काम करे तो 8 से 9 लाख रुपया इजीली यहाँ पर कमा सकता है। मेहनत करनी पड़ती है लेकिन वो बंदा कमा सकता है। अब ये आपके ऊपर है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।